یہ زارا اور ندا ہے اور یہ ہماری مارننگ پارٹی ہو رہی ہے. دنوں تک دنانیر کو کم لوگ جانتے تھے, آج کل دنانیر کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں. کیسا لگ رہا ہے دنانیر؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ایڈجسٹ کروں اس چیز کے ساتھ. اوور ویلمنگ ہے الحمدللہ, اٹس ویری سویٹ, مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ. انجوائے کر رہی ہو؟ بہت انجوائے کر رہی ہوں. مشہور ہونے کا شوق تھا ویسے بچپن سے, سچ سچ بتاؤ. شوق ایسے نہیں تھا, کنٹینٹ کریشن کے ساتھ ساتھ جب اس طرح ہوتا گیا تو میں نے کہا یہ تو اچھا مزہ آ رہا ہے. ہاں تو پھر اللہ کی طرف سے ہوا. اور ویڈیو آف دس سارٹ جو میں نے اپنے بلاگ پہ ڈالی, اور وہ بھی انسسٹنس کے بعد کہ ڈالو, بہت مزے کیا. میرا کوئی پلان نہیں تھا. امی نے نہیں, فرینڈز نے کہا. اچھا, میرا کوئی پلان نہیں تھا. یہ میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی. کہاں گئے تھے تم لوگ؟ ہم لوگ نتھیا گلی گئے ہوئے تھے, سارے دوست مل کے. ہم لوگ فرینڈز کا گروپ گیا ہوا تھا, کہ ہم نے فور کاسٹ دیکھی تھی تو فور کاسٹ پہ سنو تھی, تو ہم نے کہا وی شوڈ گو اینڈ یو نو ایکسپیرینس اٹ, بیکاز بہت مزہ آتا ہے نتھیا گلی میں. وی وینٹ اوور دا ویکینڈ, اور پھر ہم واپسی پہ ایبٹ آباد سے آ رہے تھے, تو یہ ایبٹ آباد کے راستے میں ویڈیو بنی تھی. ہم رکے تھے فار فوڈ. اچھا, تو وی اسٹاپ دا کار ایٹ دا سائڈ, ہم نے رکے, ڈھابا تھا وہاں پہ, وہ بہت خوبصورت. کتنے دنوں پہلے بنائی تھی ویڈیو؟ کچھ ہی دن, لائک 15-20 days ago. یہ اسی طرح. ابھی فوراً ہی ڈال دی تھی؟ فوراً نہیں ڈالی تھی, تھوڑے ٹائم بعد, بکاز میرا ارادہ تو نہیں تھا نا ڈالنے کا. یہ تو میں نے اپنے لیے ہی بنائی تھی, فرینڈس کے لیے ہی بنائی تھی ویڈیو, اپنے گروپ کے لیے. پھر وہ ان کو سب کو فرینڈس کو میں نے گروپ میں بھیجی, ان کو اتنی پسند آئی, انہوں نے کہا یہ تو ڈالو, کیا کر رہی ہو. آئی واز لائک, انہوں نے کہا ڈالو, بس ڈالو. I was like, okay, ٹھیک ہے. اور تم نے ایکسنٹ جان کے بنایا تھا؟ جان کے بنایا تھا, کیونکہ میں نے تمہارے انسٹا پہ دیکھا تھا, اس پہ لکھا تھا برگرز اگر. So it was intentional. ایک دفعہ ذرا لائیو بنا کے دیکھو نا, ابھی تو لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی بناؤ؟ ہاں, بلکہ ایک کام کرتے نا ہم, ابھی موبائل نہیں, ہم چلو ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیمرے سے نا, ہم دونوں. ٹھیک ہے. تو اگر کچھ کریٹ کرو گی تو کیا ایکسٹرمپور کریٹ کرو گی, میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو, اسی والی چیز کو ہم کس طرح مولڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ میں ہوں. ہاں, یہ ندا ایسر کا شو ہے, اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. اوکے, ڈن. تو اب ہمارے جو کیمرہ مین ہیں, اب ان کے اوپر ہے, انہوں نے ہمیں ایز اے موبائل ٹریٹ کرنا ہے, اور یہاں ہماری پارٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ویسے ہی جیسے اس میں تھا, لائک ویڈیو میں پہلے ان کا کلوز تھا, اور وہ ویسے ہی کیمرہ ہلنا چاہیے جیسے موبائل ہل جائے. ٹھیک ہے. ہاں, آپ ریڈی کریں گے مجھے, تو میں دنانیر کو ریڈی کروں گی. ریڈی, گیٹ سیٹ, گو. یہ میں ہوں, یہ ندا یاسر کا شو ہے, اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. پارٹی پہ لانگ آنا چاہیے. ہمارے ڈائریکٹر نے صحیح سے غور سے نہیں دیکھا. بلانا چاہ رہی ہوں اسی لڑکی کو جس نے پوری دنیا میں اپنے ماں باپ کا اور پاکستان کا نام روشن کیا. تو ایک دفعہ پھر میں ایک اور بچی کے لیے بہت فخر محسوس کر رہی ہوں, اور اسی لیے میں ان کو ایز اے سیلیبریٹی گیسٹ اپنے شو پہ انوائٹ کر رہی ہوں. آئیے ویلکم کرتے ہیں ACCA کی ٹاپر, پاکستان کا نام روشن کرنے والی زارا نعیم. السلام علیکم. آج تو میرا شو خوبصورت لڑکیوں سے بھر گیا ہے ماشاءاللہ, ہر طرف پیاری پیاری سی بچیاں اینڈ انٹیلیجنٹ. یہ بیوٹی اینڈ برینز ایک ساتھ ہمارے سامنے. زارا, تمہیں ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. ویسے تو تمہیں بہت لوگوں نے مبارکباد دی ہوگی, ہماری طرف سے, میرے پورے پاکستان کی طرف سے تمہیں بہت بہت سو مچ. تو زارا, مطلب لائک ہم یہی سوچ رہے تھے کتنا پڑھنا پڑتا ہے یار ٹاپ کرنے کے لیے, کیا بچپن سے پڑھاکو زارا تھی؟ ہاں جی, بچپن سے میں پڑھاکو زارا ہی تھی, لیکن ڈیفینیٹلی پڑھنا تو بہت پڑتا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ زندگی جینا چھوڑنی پڑتی ہے. تو زندگی جیتی ہیں آپ؟ بہت شوق سے. آپ بالکل دنانیر کی طرح کبھی ویڈیو بناتی ہیں, کوئی مستی کرتی ہیں, لائیولینس یہ ہے زندگی میں؟ مستی اتنی نہیں ہے, لیکن دوسری ایکٹیویٹیز میری کافی زیادہ ہیں. جیسے فار ایگزامپل مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے. اچھا, ٹریولنگ. ہاں, ٹریولنگ, کھانے پینے, نئے ریسٹورینٹس کھلیں گے تو میں جاؤں گی, دوستوں کے ساتھ ملنا ایوری ویکینڈ. اور جب پڑھائی کر کے بس ہو جاتی ہے, پھر 2 دن میں کتابوں کی شکل نہیں دیکھتی. اوئے ہے. اچھا, تو بچپن سے ہی مطلب لائک پوزیشن ہولڈر رہی ہو اپنے اسکول وغیرہ میں؟ بالکل, ہمیشہ سے, نرسری سے؟ نرسری سے فرسٹ آتی تھی. تو یہ والا جو ہمیشہ جیسے تمہارے اماں ابا تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, جو تمہارا ٹیلنٹ ہے آگے لے کر آنے میں, تو اماں ابا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ بچی پڑھے, یا بچی کو خود ہی شوق تھا؟
مجھے شوق بھی تھا اور آہستہ آہستہ پھر ان کی ایکسپیکٹیشنز ڈیفینیٹلی بلڈ ہو گئی. انہیں تھا کہ یہ خود ہی کر لے گی. کبھی انہوں نے زارا کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ میری 2 بڑی بہنیں ہیں. وہ بھی تمہاری طرح ہی ایسی انٹیلیجنٹ اور پڑھاکو ہاں بچی جی ہیں؟ ماشاء اللہ. میری بڑی بہن ماسٹرز ہے اور اس نے بھی اسکالرشپ پہ پڑھا تھا, اور دوسری بہن میری گولڈ میڈلسٹ ہے, اس نے بیچلرز ان بزنس کیا. یہ تو مجھے تم اپنی امی سے پوچھ کے بتاؤ تو کہ انہوں نے تمہیں کھلایا کیا ہے؟ سیریلیک کی جگہ کھچڑی کی جگہ کیا کھلایا ہے؟ بس انہوں نے دعائیں بہت کی ہیں. ان کی دعائیں جو ہیں ان کی وجہ سے ہی بس کچھ خدمت ہم کرتے ہیں, تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں تو میرا تو ماننا ہے اسی وجہ سے. ایک اور بچہ ہے جس کو میں ابھی بلانے والی ہوں. کچھ لوگ آپ کو نہیں پتا اتنے محنتی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی ہوتی ہے تب سے وہ محنت شروع کر دیتے ہیں. ایک کوئٹہ کے بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو اپنی فیملی کے لیے جوتا پالش کیا کرتا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو, جو برف میں سردی میں, کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو روز کھانا کھلانا ہوتا تھا, اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں. میرا بس چلے تو میں روز ایسے لوگوں کو اکٹھا کروں اور ان سے آپ مطلب متعارف کراؤں کہ یہ محنت ہے ہمارے ملک کی, جو اکثر ہم پورٹری کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی کہ پاکستان یہ پاکستان وہ. ہمارے ہاں بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں. تو میں ایک بچے سے آپ کی ملاقات کراؤں گی جو صبح پڑھائی کرتا ہے اور اس کے بعد جو صبح جاب کرتا ہے اور اس کے بعد شام میں بھی وہ ایوننگ کی شفٹ لگاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ اس چھوٹے سے بچے کا نام جس کا دماغ اور دل اتنا بڑا ہے کہ ابھی سے اپنی فیملی کی کفالت کر رہا ہے, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے. آئیے عبد الوارث کو ایز اے سیلیبریٹی میں اپنے شو پر دعوت دیتی ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پلیز بیٹھیں, تشریف رکھیں. عبد الوارث اس عمر میں تو بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں, جو ان کو موقع ملتا ہے. تو عبد الوارث کی تو بہت بزی لائف ہے. جی میں جو ہے یہ چیزیں نہیں کھیلتا جو کرکٹ وغیرہ. کبھی کھیلا ہے؟ کبھی زندگی میں موقع ملا کھیلنے کا؟ مجھے شوق ہی نہیں ہے مطلب اس طرح کے مطلب کھیلنے کا. تو میں بس اپنا کام سے کام رکھتا ہوں اور اپنا مطلب کام کرتا ہوں. صبح کون جاب کرتے ہو آپ بیٹا؟ صبح میں مارکیٹ میں جاب کرتا ہوں, وہاں کپڑے کا کام کرتا ہوں میں, لیڈیز کپڑے کا. سیریس پرسنالٹی ہے, مستی والا بچے ہوتے. کتنے سال کے ہو آپ؟ میں جو ہے 13 سال کا ہوں. اچھا, اور کب سے جاب کر رہے ہو؟ میں جو ہے وہاں پہ 7 سال سے جاب کر رہا ہوں. میں 7 سال سے؟ جی. یعنی کہ 6 سال کی عمر سے؟ جی. میرا بلاد 6 سال کا ہے. میں انہی کے پاس ہی رہتا ہوں اور وہیں مطلب زیادہ تر وہیں رہتا ہوں میں ان کے پاس. اچھا, تو میں بچپن سے ہی ان کے پاس آ گیا تھا. اچھا, تو انہوں نے آپ کو کپڑے کا کام سکھایا. جب آپ چھوٹے سے تھے 6 سال کے, تب آپ کیا کرتے تھے؟ جب میں جا کے بیٹھتا تھا دکان پہ, مطلب کہ پہلے جو میری والدہ, ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں. جی جی. تو وہاں سے میرے والد صاحب کا جب مطلب کام کم ہوا, کام نہیں کر سکتے تھے وہ, تو ہم لوگ آئے یہاں پہ جاب کے اس میں. اچھا. تو میری والدہ جو ہے جاب بھی کرتی تھی, تو مجھے جو ہے ان کے یہاں چھوڑ دیا تھا جہاں میں دن میں. اچھا, آپ ادھر ہی رہتے تھے؟ جی, میں ان کے پاس ہی رہ رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے پڑھنے کا کہا, میں نے ان کو پڑھنے کا منع کر دیا. نہیں, مجھے پڑھنا نہیں, مجھے کچھ کمانا ہے تمہیں, یہ تھا نا. تو میں نے پھر کپڑے کا کام ان کے ساتھ سیکھا, کام کرنا. تو وہیں پہ مطلب میں رہ رہا تھا. اس کے بعد شوق نہیں ہے تمہیں؟ نہیں, مدرسے جا رہا ہوں بس. ہاں جی, تھوڑا نام لکھنا یا کچھ ایسے جی, اپنا نام آتا ہے. تم نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ پڑھ کر جو ہے تم اور زیادہ بڑا نام پیدا کر سکتے ہو؟ نہیں, مجھے مطلب پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں. مدرسے میں نام وغیرہ لکھنا, میری ٹیچر ہے میرے ساتھ آئی ہیں. ہاں, تو لیکن اگر میں تم سے ریکویسٹ کروں کہ تھوڑا سا ٹائم نکالو کہ پڑھنے کے اوپر تھوڑا فوکس کرو بیٹا, آپ بہت نام کما سکتے ہو. آپ تو مجھے بہت ذہین لگ رہے ہو نا دیکھنے میں. میں جو ہے اگر آپ کو مجھے میرے پروگرام سے کوئی اسپانسر مل جائے کہ اس بچے کو ہم پڑھائیں گے, تو کیا آپ راضی ہوگے پڑھنے کے لیے؟ میں یہ کر سکتا ہوں, میں 2 جابیں کرتا ہوں نا. تو میں آپ کو دیکھو ایک بتاتی ہوں, ہمارے پروگرام بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہیں کہ اس بچے کی جو یہ کماتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم اسپانسر کرتے ہیں, وہ ہم ان کو دیتے ہیں, ان کے گھر والوں کو پیسے, اور ہم اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے, تو آپ راضی ہیں؟ نہیں, میں ایسا نہیں لینا چاہتا. میں چاہتا ہوں اپنی محنت سے کم. اللہ اللہ. آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں کیا ہوتا ہے؟ کینیڈا میں آپ کو گورنمنٹ ادھار دے دیتی ہے کہ آپ پڑھائی کرو
जब आप कमाने लगो तो उसका एक यही होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज कटता है सैलरी से आपकी, और वो जो उधार है वो चुकता होता है। नहीं, असल तो में अगर कोई मैं ऐसा आपके साथ शर्त बना ले, ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं अपनी मेहनत से कमाऊँ और वही खाऊँ और घर वालों तो को दूँ। खुददार बच्चा। कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे 5 बहन हैं। आप सबसे बड़े हैं? भाइयों में बड़ा हूँ मैं। 2 बहनें बड़ी हैं, एक जो है शादीशुदा है और एक के अभी होने वाली है। ओके, और उनकी शादी आपने कराई है? नहीं, बड़ी बहन की तो घर वालों ने कराई। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू माजूर है, वो पंजाब में ही रहता है, यहाँ आ नहीं सकते वो। और अम्मी क्या करती हैं? अम्मी जो है एक जॉब करती थी। हाँ। तो फिर मैं ये भी बनाना आता था अम्मी को संभालना। अम्मी तो घर मैं में जहाँ दिन बनाती में donuts? जॉब करता हूँ ना, हाँ। तो मेरा घर बहुत छोटा है जहाँ बन नहीं सकता ना ये सामान। तो मैं जहाँ दिन में जॉब करता हूँ तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी अम्मी को जब ये सामान बनाना आता है तो वो बना ले वो। तो मैंने फिर ये बनवाया अम्मी से। दिखाओ तो भी तुम्हारे डोनट। मैं मेरे किसी donuts है। बेकरी से या तो रिक्वेस्ट करूँ, है ना, सुपर ये- डोनट्स के नाम ये- से। ये सुपर डोनट्स के अपना क्यूट brand है। छोटू से। हाँ, तो ये तुम अपने घर में बनाते हो या ये जहाँ काम करते हो मैं उनके जहाँ यहाँ? दिन में जॉब करता हूँ हाँ। उनके यहाँ मेरी वालदा जाती हैं और वहाँ बनाती हैं। मैं तुम्हें और- शाउट आउट बना के दूंगी इसका, ठीक है ना? जी। तुम्हारा पेज है कोई? मेरा सुपर डोनट्स के नाम से इसी का। बस उस पे मैं बना के दूंगी, तुम उस पे अपना मेरा शाउट आउट डालना, ठीक है भाई? सुपर कोई इश्तिहार बनाए ना, तुम क्रिएटिव हो जरा, बताओ दानादीर हम क्या है ना? हाँ, हम कुछ कंटेंट सोचते हैं ना, बस मजे उड़ाओ, का content पार्टी बना के करो, डालेंगे। सुपर डोनट्स खाओ, इस तरह का कोई कंटेंट हम सोचते हैं। जी। फिर तुम्हारे पेज पे डालेंगे, वो भी तुम्हें सपोर्ट करेगी, जो भी कर सकता है मैं भी इंशाल्लाह, कर, इंशाल्लाह, support इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी। तो बस तुम मुझसे ये वादा कर लो ना, थोड़ा पढ़ लो ना, तुम इतने पढ़ने का ज़हीन असल में हो। पढ़ने का मेरी जो मतलब जहाँ मैं दिन में जॉब करता हूँ उनकी एक बेटी है छोटी, तो वो ज़ैनब उनकी टीचर है, वो मेरी वही पढ़ाती है कितनी मुझे। बड़ी है वो? वो तकरीबन 8 साल की हैं। 8 साल की टीचर हैं जी इनकी? जी। और अच्छा। वो खुद भी अभी हिफ्स कर रही हैं, वो भी आई हैं मेरे साथ। अरे तो अपनी टीचर से तो मिलाएं जरा, कहाँ है आपकी टीचर? मेरी मिले तो teacher भाई आई हम, हैं साथ। मतलब लाइक दुनिया की सबसे छोटी टीचर से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ, जो कि जिनके स्टूडेंट, इधर आइए भाई। ओह माय गॉड, लुक ये एट मेरी हर, teacher है। क्यूट। बैठो बेटा। क्या नाम है छोटी टीचर आपका? ज़ैनब ने इनको नाम लिखना सिखा दिया। और ज़ैनब क्या क्या सिखाने वाली है? यहाँ पे रखो ज़ैनब माइक। और अब क्या सिखाने वाली है ज़ैनब? मैं पहले उनको सिखाती थी, नाम लिखना सिखाया अच्छा। ABCD पढ़ाई थी, अब इनकी बहन को पढ़ाती अब क्या पढ़ाओगी? इनकी छोटी बहन को पढ़ाती हूँ। मेरी छोटी बहन है, वो भी स्कूल में अब जा रही है ना। हाँ। तो वो उनको भी पढ़ा रही हैं। और साथ साथ हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप उतना नहीं जानते होंगे जितना इन लोगों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक पहचान बनाई है अलग अलग चीज़ें करके। जैसे कि जुम्मा दुल्हन हमारे पास मौजूद हैं, और एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने, जब आप किसी मतलब लाइक किसी मशहूर शख्सियत का कोई काम करते हैं, कोई कपड़े डिज़ाइन करते हैं, कोई मेकअप करते हैं या मेहंदी लगाते हैं, तब भी आप अपने टैलेंट की वजह से मशहूर हो जाते हैं और इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करते करते आगे बढ़ता है। अभी मैं आपकी मुलाकात एक कराने वाली हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से जिनका नाम है उम्मे कुलसूम, और उन्होंने रिसेंटली, वैसे तो वो ये काम बहुत अरसे से कर रही हैं, बहुत टैलेंटेड है, मगर उन्होंने रिसेंटली बख्तावर की मेहंदी लगाई है। तो देखिए कितनी टैलेंटेड बच्ची है जिनको लाइक मौका मिला यहाँ पे सबके सामने आने का, क्योंकि उन्होंने बख्तावर की मेहंदी लगाई। आइए वेलकम करते हैं उम्मे कुलसूम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए प्लीज तशरीफ रखिए, आ जाओ इधर आ जाओ। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हो आप, जी थैंक यू सो मच। कितने अरसे से लगा रही हो आप? देखा जाए मैं कोन पकड़े हुए तो मुझे 22 साल हो गए, अरे लेकिन पैदा होते ही अम्मी ने लॉलीपॉप के बजाय कौन पकड़ा है क्या? आप समझ ले कि वो एक होश आता है ना 7-8 साल वो जो, तो फिर तब से मैंने कोन वो पकड़ ली थी, और जो प्रोफेशन में प्रोफेशनली लगाते हुए मुझे 14 साल हो गए। माशाल्लाह 14 साल। और कैसे लगाती हूँ मेहंदी? लाइक जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने सुई से मेहंदी लगवाई थी, इतनी बारीक मेहंदी मुझे अच्छी लगती थी। तुम कैसे लगा? उस वक्त सुई वाला सिस्टम था, और हाँ। अब तो ये कोन्स का सिस्टम है, तो हाँ। बस कोन्स से ही लगाती हूँ सुई वाली मेहंदी। लेकिन अब समझ तुम्हें बख्तावर ने कैसे चूज किया? उसने तुम्हारे मेहंदी, तुम्हारा काम किधर देखा था जो तुम्हारे बारे में उनकी फैमिली
फैमिली में उनकी एक आंटी है, बंटो आंटी, मैं उनके यहाँ जा चुकी हूँ, मैंने पहले ब्राइडल लगाई है उनकी फैमिली में। अच्छा। तो फिर वहाँ से उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। वैसे तुम कहाँ, अगर जैसे तुमसे कोई मेहंदी लगवाना चाहे तो तुम किधर मिलोगी? मेरा इंस्टा पे पेज है, मेरा फेसबुक पे पेज है। किस नाम से? कुलसूम जहना के नाम से मेरा। कुलसूम जहना? जी, कुलसूम जहना, HENN। कुलसूम जहना। जी। अच्छा 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 अच्छा। उस नाम से मेरा पेज है और मेरे वहाँ से ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर वहाँ से ले सकते हैं और मुझे कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, जब तुम गई ना, लाइक तुम्हें कहा कि जी ब्राइडल मेहंदी लगानी है, बताया था किसकी लगानी है? नहीं, चुपकी चुपकी लेकर गए? जी। तो तुम्हें रास्ता नहीं पता चला कि तो तुम जा रही हुई थी? मुझे वो पिक एंड ड्रॉप था हमारा कि उन्होंने कह दिया था कि है ना आपको पिक करेंगे आपके यहाँ से, आप अपना लोकेशन हमें सेंड कर दे। लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था क्योंकि वो जो टेस्ट वगैरह के लिए कॉल आई थी, कोरोना टेस्ट के लिए। अच्छा, पहले कोरोना टेस्ट कराया एक दिन पहले, और फिर वो सुबह 11 बजे वो आई रिपोर्ट्स और मुझे फिर 2 बजे जाना था। अच्छा। तो 11 बजे तक मैंने कहा अभी रिपोर्ट्स आएगी तो फिर अब जाना है या नहीं। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स भी क्लियर आई और फिर हम लोग गए वहाँ पर। तो खास तैयार होके गई होगी बख्तावर से मिलने के कुछ लिए? भी नहीं, ऐसे ही। वो मेकअप भी मैं तो इतना ज्यादा नहीं करती क्योंकि नमाज पढ़नी होती है। वो नमाज का भी टाइम था, तो बस ऐसे ही मैं तो वहाँ पहुंची जब, फिर तुम मिली, तुम एक्साइटेड हुई? मैं ज़ाहिर है बहुत घबरा गई। अब मैं खुद सोचे सही मेहंदी लगा पाई? हाथ कांप रहे हैं? मैं इतनी ज़्यादा डर गई क्योंकि इतने आप जाए तो आप इतनी सिक्योरिटी और सब कुछ। तो पहले तो मैं ठंडी हो गई। फिर जब मैंने उनकी मेहंदी स्टार्ट की तो वो खुद इतना रिलैक्स थी, वो इतना ज़्यादा, उन्होंने पोलाइटली मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि है ना, मैंने सुना है उनके बारे में क्योंकि जो कोरियोग्राफर थे उनके, वो जाहिद हमारे पास भी आते हैं ना, तो वो बता रहे थे इतने अच्छे भी नज़ीर ने अपने बच्चों की तरबियत की है, इतने डाउन टू अर्थ, इतने ग्राउंडेड हैं कि वो नहीं लगते इतने बड़े फैमिली के बच्चे हैं। ये ही तो एक्चुअली असल तरबियत होती है ना। जी जी, उन्होंने इतना, मतलब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको कैसी मेहंदी लगानी है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से लगाएं लेकिन कुछ अलग। अब उन्होंने बिल्कुल मुझ पर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो अब मैं ब्राइड की लगाती हूँ तो मैं पूछती हूँ उनसे कि आप मुझे बताएं आपको कैसी लगानी है। मैंने 2-3 मरतबा पूछा। जब मैं इस पार्ट पर आई ना, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा अगर आप कर सके तो आप अजरक वाला डिजाइन बना दे। अल्लाह, सो स्वीट। मैं नहीं कह रहे, वो अगर आप मतलब जो बच्चे जो सारी जिंदगी बाहर पले बड़े हैं, वो कितने उनको अपने कल्चर से प्यार है। हाँ, तो मैंने, उन्होंने उस वक्त है ना अजरक वाला ही वो पहना हुआ था। तो मैंने कहा वो इसी, और उन्होंने मुझे एक पिक्चर बताई। ये देखो ना, ये अजरक वाला स्टाइल, ग्रेट। तो उन्होंने मुझे एक पिक्चर भी बताई। फिर है ना, मैंने अब उस वक्त करना मेरे लिए, अब मुझे था कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने बस बिस्मिल्लाह बोला और मैंने वो बनाए। एक दो तुमने टिप्स दी कोई कि भाई अगर आप लॉन्ग जो है वो मैंने तवे पे कढ़ाएंगे तो रंग अच्छा आएगा? मैंने उनको सारी टिप्स दी कि आप ये सब कुछ करिएगा तो आपका कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये अल्लाह की तरफ से ही है कि उन्होंने मुझे उस वक्त कहा और मैंने फिर उस वक्त लगाए। मैंने पहली मर्तबा ये डिज़ाइन लगाया, मैं इतने सालों से मेहंदी लगा रही हूँ और ये वाला डिज़ाइन मैंने पहली मर्तबा लगाया और वो लगा और वो परफेक्ट भी बन गया और वो सब कुछ। अच्छा, दुल्हन तो यहाँ तक उसकी मेहंदी लगी हुई होती है, पैर भी इतने ज्यादा होती है। आजकल की दुल्हनों की मेहंदी ज्यादातर यहाँ तक ही होती है। ये देखो कितनी कम मेहंदी लगाई है ना बख्तावर ने। जी जी जी, हाँ, इतनी ही आजकल की तुम तेज लगाती हो? थक नहीं गई बैठे बैठे थी? मुझे 5-5.5 घंटे लगे। मैं तेज भी लगाती हूँ लेकिन बारीक मेहंदी में टाइम ही बहुत लगता है। जितनी बारीक होगी ना आपको टाइम उतना लगेगा। तो उनकी बहुत बारीक मेहंदी थी, नीट। और मुझे अच्छा सच्ची बताओ, जब बख्तावर के साथ पिक्चर्स वायरल हुई उसके बाद अब तुम्हारी वैल्यू कितनी बढ़ गई लोगों की नजर में? लोग जो पहले भी लोग काफी जानते थे लेकिन अब जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानते हैं। ऐसे तो नहीं बढ़ाए? नहीं, और पिछले, मैंने, आप यकीन माने, पैसे तो मैंने वहाँ से भी उनसे वही चार्जेस लिए जो मेरे थे। हालांकि मैं वहाँ जाकर ले सकती थी चार्जेस ज्यादा, और मैं उनसे उस वक्त भी कहती तो वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर मैं अपने चार्जेस ज्यादा भी कर देती। लेकिन मैं बोरा कम्युनिटी से हूँ और हम लोग कभी चीटिंग नहीं करते कि मेरी जो बात हुई थी मुझे वही करना था। तो अगर मैं पैसे बढ़ाऊं और मैं बोल के लूं तो वो अलग बात है। अब मेरी बात हुई थी और जितना काम था तो मुझे भाई इन चीज़ों से बहुत डर लगता है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो फिर मैंने अपने जो मेरे जायज़ थे मैंने उनसे वही लिए। वो ग्रेट। आइए मैं आपको मिला रही हूँ हिरा ज़ीशान से, जो कि मशहूर है एज जुम्मा दुल्हन के नाम से। वेलकम करते हैं। ओए तो हिरा खुद ही कर लेती है मेकअप, या अभी खुद ही किया है या ARY में किसी से करवाया? ARY से किया। तो अभी तक कितने सालों से माशाल्लाह आप
दुल्हन बन रही हैं? ये कौन सी नंबर का जुम्मे का सामान है? जुम्मे का सामान मैं तो 16 साल तो मेरी शादी को हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो जुम्मे के तैयार होने का जो रीजन है ना, वो मैंने स्पेशली कहा था कि मैं निदा यासिर के शो में जाके बोलूंगी। अच्छा। क्योंकि यासिर शामी के प्रोग्राम में तो आपको पता है 7 to 8 मिनट्स का ही इंटरव्यू चलता है। जी जी तो जी। उसमें बस चटपटी बातें होती हैं और इसमें पूरी जिंदगी तो नहीं ना बता सकते। हाँ। लेकिन जब मुझे आपकी कॉल आई ना कि ARY पे आना है इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सब लाहौर में ना बहुत ज्यादा इंटरव्यू करना चाह रहे थे। तो अच्छा। मैंने उनको सबको कहा नहीं, जब तक मैं निदा यासिर के शो में नहीं जाऊंगी हाँ। मैं आपके पास अभी नहीं आऊंगी। 16 साल जब आपकी शादी को हो गए तब से आपने दुल्हन बनना शुरू किया? नहीं, वरना नहीं। बचपन में भी शीशे के सामने खड़े होके नहीं बच्ची आपने मुझे अपनी मुझे बचपन से ही तैयार होने का, झूमर शुमर लगाने का बहुत क्रेज था, बहुत ज्यादा। मेरा ननियाल है, ददियाल है, सब जानते हैं कि किसी की भी शादी में इसने फौरन दुल्हन बन जाना, यानी कि झूमर शुमर लगा लेना, तैयार होने का ना एक क्रेज होता है। तो जब मेरी वालदा बीमार हुई, वो मैंने बताया इंटरव्यू में कि मेरी वालदा को कैंसर हो गया। अच्छा। तो उस दौरान गंगाराम हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। जी, जी। तो जिशान से मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो तो जिशान आपके जो हस्बैंड है वो आपको किधर मिले थे? वो- ऐसी शादी में आपने झूमर लगाया हुआ था और वो कहीं मिल गया? नहीं 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 मिले नहीं थे वो, बस उनको मैं पसंद आ गई थी, कहीं से भी आ गई, लेकिन आ गई थी। अच्छा। तो मेरे फियांसी थे, लेकिन मेरी अम्मी जब लास्ट स्टेज पे थी ना, तो वो हॉस्पिटल में ब्लड देने ही आए थे। अच्छा। तो मेरी वालदा ने उनको देखे ना, तो जैसे डॉक्टर ने बोला ना कि ICU में ये लास्ट स्टेज है, ये आज रात भी बड़ी मुश्किल से होंगी। ओहो। तो मेरे जेठ वहाँ पे आए, मेरी सास आई हुई थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि अगर मेरी बेटी की रुखसती हो जाए। हाँ, उनके तो- सामने आपकी सादगी से हाँ हाँ जी, यानी कि जितना शौक था ना मेरे अंदर, मैं अपनी वालदा को कहती होती थी मैंने बहुत अच्छी दुल्हन बनना है। अल्लाह। तो मैं ऐसे ही एज इट इज जो घर के कपड़े हैं वो ही पहने और रुखसत कर दिया कि ले जा। यार ये तो बड़ी जाती हो गई। हाँ, वो ऐसे ही ले गए। इवन के जिशान भी, वो भी परेशान थे कि यार रुखसती करने लगी हो, रुखसती करके लेके जा रहे हो। हाँ। तो बस ये ऐसी ही रुखसती होनी है, तो वो शौक अंदर का अंदर ही रह गया। अच्छा। लेकिन मैं ब्राइडल कैसे बनती थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरफ लेके आया। कैसे? मुझे ना शादी से पहले ना बम ब्लास्ट हुआ था हमारे इलाके में। हाँ। तो वो उसका ना मुझे दिमागी अटैक हो गया। ये मतलब बात उसकी आवाज से या क्या? आवाज से एकदम ऐसे मैं जैसे डिप्रेशन में नहीं चली गई। हाँ। ऐसे चली गई। तो मेरी वालदा ने मुझे लेके गई साइकियाट्रिस्ट के वहाँ पे पास, लेके गई। वहाँ पे उन्होंने चेक करवाया कि इसको दिमाग का ना अटैक हुआ है, अच्छा। बहुत सीरियस, कि ये सुसाइड करने की तरफ भी जा आपको रही है। डिप्रेशन होता था? बहुत, इतना हो गया था कि प्रोथोडाइल जो बस 25 मिलियन की तब खाती थी। लेकिन जब मेरी वालदा की डेथ हो गई ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, मेरी नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। ये एक ऐसा निदा राज है कि मेरे हस्बैंड ने 16 साल से ना अपने बहन भाइयों को बताया, किसी को नहीं बताया कि मेरी मिसिस को ये प्रॉब्लम है, कि इनको ये मसला चल रहा है। तो उनको कैसे पता चला कि अगर आपको दुल्हन बनने की कहा जाए नहीं आप उनको रिलैक्स होंगी? जब वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई ना, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी दिमाग की वेन कमजोर हो चुकी है। अच्छा। ब्लड जो आता है ना, इनके नाक से आता है, मुंह से आता है, जिस दिन इनके कान से आ गया ना, तो हम आपको इनकी डेट बता देंगे। तो मेरे डेथ की डेट? जी, उन्होंने कहा कि ये इतना खतरनाक है कि दिमाग का अटैक होना, ये बहुत खतरनाक बात है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे बताएं करना क्या। नहीं, कि इसको ना आप एडमिट करवाएं हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में। अल्लाह। सीधी सी जो बात, मेंटल हॉस्पिटल में उन्होंने कहा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड गए ना मेरी दवाई लेने के लिए, मेडिसिन, तो हम पता कर रहे थे, मैं उनको बता रही थी मेरी अम्मी यहाँ लेके आती हैं, यहाँ लेके आती है ना, तो वो उनको पूछ रहे पता थे। कैसे चला कि आप लाइक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं सिर्फ अपने आप को रिलैक्स इस तरह? ये मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने जब कहा ना कि मैंने एडमिट करना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये नहीं मैंने करना, मैंने बड़ी मुश्किल से शादी की इससे। कितने अच्छे हस्बैंड माशाल्लाह। बहुत। उन्होंने कहा क्या कर सकते, उन्होंने कहा इसको ऐसे करें कि टीवी देखे, ज्यादा से ज्यादा टीवी देखे और मूवीज देखे, एंटरटेन करे अपने आप को करे, ये करे। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे, कोई भी काम कहते थे तो मैं फटाफट करके फारिग कर देती थी, घर के सारे काम कर लेने सारा कुछ। तो कहते जिस तरफ मैं इसको लाना चाह रही हूँ, ये क्यों नहीं आती। तो उन्होंने इस थिंकिंग को समझने की कोशिश की कि लेडीज को शॉपिंग का शौक होता है, मेकअप का बहुत शौक होता है, इसको ना तैयार होने का बड़ा शौक था। तो जब वो पाकिस्तान में थे ना, तो जुम्मे के जुम्मे वो घर पे ही रहना। अभी वो पाकिस्तान में नहीं होते? नहीं, वो इंग्लैंड चले गए हुए वहाँ। तो अभी वो जब पाकिस्तान में थे तो उन्होंने जुम्मे के जुम्मे क्या कहा कि तैयार हो? नहीं, 5 घंटे डॉक्टर ने बोला था कि इसको बिजी रखो, 5 घंटे बिजी रखो, बिजी रखो कि 24 इसको घंटे। इस मर्ज से बाहर निकालना है। तो अच्छा, तो फिर क्या हुआ, कैसे किया उन्होंने कहा मैं एडमिट ही कराऊंगा, मैं इसको बिजी रख लूंगा। अच्छा। अब खुद उन्होंने क्या करना, जुम्मा पढ़ना, हर चीज हम लोगों ने करनी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहना तुम तैयार तो हो थोड़ी सी। अच्छा। तो मैंने तैयार हो क्या ना, कहती नहीं थोड़ी सी और हो जाओ। अच्छा। फिर थोड़ी सी और हो जाओ। फिर कपड़े निकाले, ड्रेसिंग कहते ये नहीं, वो दूसरे वाला निकालो, हाँ। वो पहनो, खुद सो जाना। हाँ। और मैं धड़ाधड़ लगी तुम्हें लगा देना ना, मतलब और मैं लगी हूँ। फिर मैं आगे देखी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है।
नहीं नहीं, थोड़ा सा और होना यार, कोई रूप ही नहीं निकल रहा। अच्छा, ये फिर जब वो बाहर आउट ऑफ सिटी चले गए तो वहाँ जाके जुम्मे के दिन वहाँ पे छुट्टी होती है, आपको पता है। अच्छा, उन्होंने ऑनलाइन होना तो उन्होंने ये बात करनी है, आज तैयार नहीं हुई। इवन कि मेरे बच्चे जो है ना, वो भी जब मैं तैयार नहीं हूँ तो कहते खैर है मम्मा। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6, जिनमें से 2 की तो डेथ हो गई हो गई जी। है, और 4 मेरे बच्चे माशाल्लाह, 3 बेटे 1 बेटी। हाँ, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ से निकाला, और वो नाम पड़ गया जुम्मे के जुम्मे, क्योंकि उन्हें छुट्टी जुम्मे के दिन होती थी। तो जुम्मा दुल्हन का नाम कैसे मशहूरा, मतलब आप मेरी एक मेकअप वीडियो करते टिकटॉक में बनाती थी। हाँ। ठीक है, उन्होंने मुझे टिकटॉक पे भी लगाया। मेरे बाल बहुत छोटे थे, पूरी मेरी सोसाइटी को पता है, सबको मेरे इतने बाल थे। उन्होंने कहा मुझे इतना शौक है, तुम बाल ही नहीं बढ़ाती हो, तुम्हें शौक नहीं है कि हस्बैंड को पसंद है। मैंने धड़ाधड़ हर नुक्सा निकालना करना, और अब जब देखती हूँ कि फिर उन्होंने एक प्रोडक्ट ली हेयर ऑयल की, हीरा हेयर ऑयल की, उन्होंने कि इसको सेल करो, इसकी तरफ मुझे लगा दिया। और अब या लाहौर में, आपके बाल आपने खुद ही लंबे किए अपने? हाँ जी, लाहौर में हीरा हेयर ऑयल बहुत पॉपुलर है। मुझसे बात करने के लिए लेडीज तरसती हैं कि हीरा ऑयल की बुकिंग करवाओ, हमने लेना, तुम्हारे बाद 2 साल में इतने लंबे कैसे हो गए। हाँ। उन्होंने इस तरफ भी मुझे लगा दिया, लेकिन ये बात उन्होंने कभी ओपन नहीं की। एक वीडियो थी मेरी, और आपने ओपन कर दी सबके नहीं सामने? मैंने की, मैंने रात को मैंने अपने हस्बैंड से बोला ना, तो वो कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है, हाँ, तुम क्यों घबरा रही हो। हाँ। ये यासर शामी की एक वीडियो थी, और वो जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बैड कमेंट्स आए, हाँ। बहुत लोगों ने हट किया, इवन के मेरे जो, लेकिन देखिए ना, कोई मकसद है ना जुम्मे को दुल्हन बनने ये का। बेटा ये कोई नहीं समझा, मकसद है। बिलीव करें कोई नहीं समझा। मुझे इतने कमेंट्स किए गए और कहते हैं जी जुम्मे की ब्राइडल बत्ती इतना खर्चा करती है तो बच्चियों की शादी करवा दे। हाँ, हाँ, जुम्मे के अच्छा, बाद की जुम्मे नमाज की- पढ़े। मुझे एक बात बताए, जुम्मे के जुम्मे एक ही जोड़ा होता है या अलग अलग जोड़े? नहीं नहीं, हर अलग जोड़ा होता है। स्पॉन्सर होता है या खरीदना पड़ता है आपको? बहुत तो मैंने खरीदे हुए, अल्लाह, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए। मैंने बहुत से ये आपने पहना, ये भी आपका अपना? इवन मैं शादी पे भी जाती थी ना, तो खाना खुल गया, जो मर्जी हो, मेरा हस्बैंड तू तैयार होती रहा, हाँ, तू तैयार होती जब मैं ले जाऊंगा वापसी भी अपने शहर में, और पिज्जा वगैरह खा लेना, वहाँ खाना भी खुल जाना। आज ये स्टेज है कि 3 माह हो गए मैंने टैबलेट नहीं ली, माशाल्लाह। मैंने बिल्कुल जबरदस्त। नहीं ली। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे हूँ कि आप लोगों ने इतने बैड कमेंट्स किए कि मेरे ससुराल में इतना इतराज हो गया, हाँ, कि आप लोगों को समझ नहीं आती कि कोई लेडीज क्यों बन रही है। माँ की डेथ हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आई तो मेरे बच्चों की 2 की डेथ हो गई। ये लोगों ने क्यों नहीं समझी इस चीज को। और मुझे डिप्रेशन वाली बातें नहीं करें। ये देखिए आप कितनी अच्छी नहीं, लगी। वो तो मैंने जिसका दिल इतना नर्म और वो इतना सोचता है दूसरों के बारे में कि मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे छोटा सोशल वर्कर है। आइए मैं उसको अपने शो पे ऐसे सेलिब्रिटी बुलाऊंगी कि ये जो बच्चा सोशल वर्कर, जिसको मैं यंगेस्ट सोशल वर्कर कह रही हूँ, जिनका नाम है हसन अदील, ये हमारे एयरवाई के एम्प्लॉय हैं, अदील साहब उनका बेटा है। अरे वाह भाई, चलो भाई भांजे आ जाओ। हसन अदील को वेलकम करते हैं जी हमारे शो पे। अदील, हसन, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि मैंने ये काम करना है? 11 साल तो बहुत छोटी एज होती है। बस निदा आप ही, अब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हाँ, तो उस दिन एक्चुअली जो मेरा घर है वो एक बारौनक जगह पे है। अच्छा, बस उस दिन मेरे पता नहीं दिल को क्या होने लगा, अजीब सी कुछ हो रहा था, बस दिल में कुछ हो रहा था। हाँ, वो मुझे पता नहीं क्या, बस अल्लाह कुछ करवाना चाह रहा था। मुझे डेली वेजेस वालों का दर्द समझ आ रहा था। हाँ, बस मैंने अपनी मामा को बोला कि आप दाल बना दें, मुझे कुछ हो रहा है, बस आप ज़्यादा लोगों के लिए दाल बना दें। तो उन्होंने एक बड़ा सा पतीला निकाला, उसमें उन्होंने दाल बना ली। हाँ। मैंने अपने बाबा को कॉल किया कि आप ऑफिस से वापसी में रोटियां ले आइएगा। अच्छा, तो वो अराउंड 100 से बाबा ने नहीं पूछा कि कितनी रोटियां नहीं, लानी? उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला क्या दावत हो रही है घर में? हाँ, तो मैंने बोला नहीं दावत नहीं है, बस आप ले आए, कुछ करना है। हाँ। वो 100 से अबव रोटियां ले आए। जब वो घर लाए हैं, दाल रेडी थी, तो जो छोटी छोटी शॉपर्स होती हैं उसमें हम लोग ने वो पैक की। हाँ। एक कार्टन में हम लोग ने वो सब भरा। खुद ही अम्मी अब्बू और आपने? हाँ, हमने भरा और वो हम लोग बांटने निकल गए। अब हम बांट रहे हैं तो वो लोग जिस तरह से ले रहे थे, उन लोगों के जिस तरह से टेंशन थी कि दुकानें बंद हो गई, कल क्या होगा, कल हम लोग अपने बच्चों को जाके घर में खाना कैसे देंगे, हम क्या करेंगे। तो बस वो मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है यहाँ और पे। छुट्टियां भी थी स्कूल की, करते हैं क्या भाई? बस तो वो जैसे ही मैंने आखिर के कुछ 2 अंकल्स रह गए थे। हाँ। तो मैंने उनको एक दाल निकाली, एक रोटी निकाली, मैंने उनको दी। तो उन्होंने ये प्रॉपर यूँ हाथ जोड़े और उन्होंने बोला कि आप एक और दे दें, मुझे अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। मुझे समझ नहीं आई क्या, बस मैंने दे दी दूसरी निकाल के। हाँ,
ہم لوگ آگے گئے تو ایسی گاڑی لے کے بس تو 3-4 گھر چھوڑ کے ہی وہ بھی باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے, تو میں ان کے پاس گیا تو وہ جو ہیں میں نے ان کو دی تو وہ آخری روٹی تھی تو وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی, تو ان کے برابر میں ایک نلکا تھا, انہوں نے وہ کھولا, اس سے وہ روٹی گیلی کی, اسی روٹی سے اپنا ہاتھ دھوئے اور اس سے دال کھائی. میں رات میں گھر آیا, مجھے بہت ٹینشن ہونے لگی, میں نے بولا کیا کروں کیا کروں کیا کروں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایون دو مجھے اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن کا بھی مطلب نہیں پتا تھا. مجھے یہ لگا کہ مجھے یہ لگا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہوگا کرفیو یا کچھ ایسی چیز, بس سمجھ نہیں آیا. میں لیٹا ہوا ہوں, بس اس رات میں سو گیا. نیکسٹ ڈے جب میں اٹھا تو میں اپنی ماما کے پاس پھر سے گیا, میں نے بولا ماما آج آپ پھر سے دال بنا دیں. تو انہوں نے بولا کہ بیٹا میں روز روز کیسے دال بناؤں, گھر کی گروسری ہوتی ہے اور گھر کا کھانا بنانا ہوتا ہے, سب کرنا ہوتا ہے, تو میرے لیے تو یہ بہت ہارڈ ہوگا. بس اب میں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہوں, میں اسی طرح یوں کر کے اپنے صوفے پہ بیٹھا ہوں, تو میڈ آئی میرے پیچھے اور انہوں نے یوں کیا مجھے. جیسے ہی انہوں نے یوں کیا میں نے مڑ کے دیکھا, میں بولا جی کیا ہوا, تو انہوں نے مجھے ایک 500 روپیز کی نوٹ دی اور انہوں نے بولا آپ اپنا میڈ نے جی. بس وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. غریب کا درد سمجھ سکتا ہے, دیکھو نا. تو پھر انہوں نے تمہیں 500 دی اور تم نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا اس 500؟ مجھے سمجھ نہیں آئی, میں اس وقت بھی گھبرایا تھا. میں نے بولا 500 کیوں, مجھے تو کھانا پکوانا ہے نا, کھانا پکا دے. بس میں ٹینشن میں ہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. شام میں میرے بابا گھر آئے تو اس وقت اعلان ہوا کہ کل سے بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے. تو نارملی جب لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تھا, ایون تو آپ کی فیملی میں بھی ایسا ہوگا, ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم میکس سے میکس بھی 2 ٹرالیز لیتے ہوں گے کسی بھی سپر مارکیٹ سے. مگر جس سپر مارکیٹ میں ہم گئے لاک ڈاؤن کے ڈر سے ہم لوگ نے ٹوٹل 3 ٹرالیز لی پوری بھر کے, مطلب 7 ایکسٹرا بہت لے لیا کہ پتہ نہیں شاپس بند ہو جائیں کچھ ہو جائے. تو بس وہ ہم باہر آ رہے تھے تو جو ہمارے پورٹرز ہوتے ہیں وہ جو ہماری ٹرالیز لے کے جاتے ہیں, میں نے اپنی ماما سے پوچھا کہ ماما کیا یہ سپر مارکیٹ والے ان لوگوں کو گروسری دیتے ہوں گے؟ تو میری ماما نے بولا نہیں حسن. تو میں نے بولا ماما مجھے کچھ کرنا ہے. ہم جب گھر آئے تو میرے بابا اور ماما نے دونوں یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ حسن یو کین اسٹارٹ این NGO, اور پھر ہم نے نام ڈیسائیڈ کیا اور بس اب آپ کے سامنے. نہیں تو کیسے ہوا, کیا کیا تم نے؟ تم گھر گئے, محلے گئے, بیل بجائی, جیسے ہوتا تھا نا ہم بچپن میں کہتے تھے انکل ہم نے سبیل لگانی ہے چندہ دے دیں یا کچھ ایسا, مطلب لائک کرتے تھے. تو تم نے کیا کیا؟ ایکچولی کووڈ کا بھی تو ڈر تھا, آپ جگہ جگہ جا بھی نہیں سکتے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں ایک سیویئر ایسٹمیٹک پیشنٹ ہوں, اور ایوری ایئر میں نے تقریباً پورے منتھ ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہی ہے. نیبولائزنگ پہ ہوتا ہوں, میری میڈیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں. کووڈ تھوڑا نا ڈینجرس, بہت ڈینجرس تھا. بٹ وہ مجھے ایک جیسے انہوں نے NGO کا بولا تو مجھے ایک خوف تھا کہ شاید وہ بولے کہ ہم تم نے تو باہر ہی نہیں جانے دیں گے, ہم خود جا کے بانٹ کے آ جائیں گے. بس وہ مجھے خوف تھا. میں بس وہ میری خواہش تھی. ایکچولی ہمارے پورے خاندان میں جو ہے یہ کام چلتا رہتا ہے اور غریبوں کی مدد کسی بھی طرح سے ہوتی رہتی ہے. یہ اٹ رنز ان دی فیملی نا, وہ تمہارے اندر آئی چیز. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.